تابش صاحب جو ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ شاعر بھی ہیں اور باکمال افسانہ نگار ہیں، میں ملتمس ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر سلطان تابش صاحب سے کہ اپنا افسانہ پیش فرمائیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ناصر بھائی موجود ہیں۔ اللہ بہت تعالیٰ محبت آپ کی، بہت محبت۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین اور آمین سمیت سب دوستوں کے۔ آپ جیسے لوگ گوہر نایاب ہیں اور ہمارے درمیان جو ہے ہمت و حوصلہ محبت، کا باعث ہے۔ بہت محبت، بہت محبت۔ خوبصورت سماعتوں کی نظر، جلتی بجھتی شمع، واہ، دل کوئی فلسفہ نہیں مانتا، واہ، اس کی ضدیں انوکھی ہیں، انداز نرالے ہیں، ادائیں جان لیوا ہیں۔ وہ وہیں بسیرا کر لیتا ہے جہاں آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے چکر کاٹ رہے ہوں۔ زخمی دل سر پٹک کر آوازوں پر آوازیں دیتا رہتا ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج میرا دل بھی نہ جانے کیوں انہی راہوں پہ بے تحاشا بھاگ رہا ہے، پکار رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ میں دور دور سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر سن نہیں پا رہا ہوں، یا شاید سن پا رہا ہوں، لیکن ساری آوازیں نہیں سن رہا ہوں۔ بہت سی آوازیں مرتی جا رہی ہیں، صرف ایک آواز سانس لے رہی ہے، وہ آواز ایک سادہ کاغذ میں قید ہے۔ سادہ کاغذ ٹیبل سے فرش پر آ گرا ہے اور بڑی معصومیت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خط ہے جس کا مجھے مدت سے انتظار تھا، سرحد پار سے آیا ہوا خط۔ میں ساکت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ خط پر پرچھائی رقص کر رہی ہے، پرچھائی، ہاں اس کی پرچھائی جنہیں میں پہچان گیا ہوں، اور پھر ایک زوردار قہقہا لگاتا ہوا وہ خط اٹھا لیتا ہوں۔ قہقہے کی آواز سن کر اماں جاگ اٹھی ہیں اور میرے قریب پہنچ کر مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ پھر ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، نہال، تمہیں اکثر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں ان کا سوال سن کر بھی خاموش ہوں۔ انہیں کیا بتاؤں، مجھے خود علم نہیں۔ میں کیوں قہقہا لگاتا ہوں، کیوں رات کے آدھے پہر روتا ہوں، کیوں اچانک چیخ اٹھتا ہوں، اور جواب میں صرف خاموشی اور میری طرف نگراں اماں کی آنکھیں، خاموش ساکت یہ دو آنکھیں۔ اور پھر اماں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگتی ہیں، پھر شاید مطمئن ہو کر بستر پر چلی گئی ہیں۔ اور اب ہلکی ہلکی روشنی ڈرائنگ روم کے دریچوں سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا پر بظاہر دھندلاہٹ چھائی تھی، لیکن دیواروں کے رنگ روپ کے پس منظر میں مجھے افشی کی لچکتی ہوئی شبیہ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس طرف لپکا لیکن کچھ بھی نہ تھا۔ میں اچانک کھڑکی کا پٹ کھولتا ہوا اس کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کھڑے کھڑے نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں۔ اچانک سائرن کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں دور دیس کے سفر سے لوٹ آیا۔ پھر لائٹ جلائی تو میرے ہاتھ میں دبا کاغذ نم محسوس ہوا۔ میں آہستہ آہستہ سے گنگناتا ہوں۔ مدتوں وہ کاغذ نم رہا، پھر خط کھولتا ہوں۔ خط پر مختلف لکیریں کھنچ گئی ہیں۔ میں اپنے ہی آنسوؤں کے شہر میں قید ہوں۔ میں اپنے ہی آنسوؤں کے شہر میں قید ہوں، اور کاغذ کا ایک ٹکڑا وہ ناؤ ہے جو آنسوؤں کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ اور میں پاگلوں کی طرح ایک مرتبہ پھر اس خط کو ایک تک دیکھ رہا ہوں۔ ہم جب سرحد پار کریں گے تم بہت یاد آؤ گے۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں اور پاگلوں کی طرح ٹکر ٹکر خط کو تاک رہا ہوں۔ افشی میرے پڑوس کی تیز و ترال لڑکی، جس گھر میں افشی آئی تھی وہاں سے ہمارے تعلقات پہلے ہی سے تھے،
मैं अक्सर छुट्टियों में वहां जाता, लेकिन अब के तो मसरूफियतों ने कुछ इस तरह घेरा कि चाहने के बावजूद फौरन वहां ना जा सका। मगर जैसे ही मसरूफियतों से निजात मिली, मैं वहां पहुंच गया, और पहुंचते ही मेरे कदम रुक से गए, क्योंकि मेरे सामने दुबली पतली मुस्कुराती हुई अजनबी लड़की खड़ी अंदर आने का इशारा कर रही थी। उसी दरमियान आंटी की आवाज कानों से टकराई थी। वो कह रही थी, अंदर आ जाओ बेटा, पर्दा तुमसे क्या, तुम तो घर के ही फर्द हो। और मैं उनकी आवाज सुनकर अंदर पहुंचा, उनके करीब जा बैठा। उनकी आवाज फिर कानों से टकराई, अरे बेटा, इसे नहीं पहचाना? ये मेरी भतीजी अफशी है, कल ही तो आई है। फिर आंटी इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन मेरी निगाह सिर्फ अफशी की जानिब थी और ध्यान आंटी की तरफ। फिर मैं लौट आया। चंद ही दिनों में वो बेहद करीब आ चुकी थी। वो तरह तरह की अटखेलियां करती, बच्चों की तरह मुंह बनाकर रूठ जाती, और फिर मुस्कुराकर बातें शुरू करती। बातें करते करते वो सवालें बहुत करती थी, और उन सवालों में वो बार बार उलझ जाती थी, और मैं मुस्कुराता, उसके सवाल का जवाब देता, और उसे उन सवालों के दायरे से बाहर निकाल देता। तो वो मुस्कुराते हुए न जाने क्या कह जाती। उसे चुप रहने की आदत ही न थी। जब देखो बोलती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। और जब मैं कानों में उंगलियां देकर कहता, बाबा मैं तो चला, तुम्हारी आवाज से मेरे कानों के पर्दे फटने ही वाले हैं। ये कहते हुए जब मैं खड़ा हो जाता, तो वो अपने मुंह पर उंगली रख कर बड़ी मासूमियत से कहती, लो मैं चुप हुई जाती हूँ, अब नहीं बोलूंगी, सिर्फ तुम्हारी सुनूंगी। और फिर मैं बोल उठता, लो अब भी बोले जा रही हो, कहती हो कि खामोश हो जाऊंगी। फिर हम दोनों एक साथ मुस्कुरा उठते। और अब के छुट्टियों के दिन इस तरह पंख लगा के उड़ गए कि कुछ समझ में ना आया कि दिन कैसे कटा, रात कैसे गुजरी, और समझ में आने ना आने से क्या होता है। छुट्टियों के दिन तो गुजर ही गए, और मुझे वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। और जाने क्यों पहली मर्तबा एतवार का इंतजार करने लग गया। इंतजार, इंतजार, जिसकी कदर पहली मर्तबा महसूस हुई। इंतजार जिसने मुझे अंधेरों से भी बेफिक्र कर दिया था और चारों ओर से घेरे हुए थे। इंतजार जिसने अंधेरे वीराने खंडहर नुमा दिल के नहाखानों में एक चिराग रोशन कर दिया था। चिराग रोशन होते ही मैं चौंक उठा। ऐसा लगा जैसे मैं सदियों का सोया आज जाग उठा हूँ। और फिर जब मैंने निगाहें उठाई, तो अपनी तरफ उस दुबली पतली अल्हड़ लड़की की आंखों को मुंतजिर पाया। कितनी खामोश थी वो आंखें। हाँ, वो अपनी आंखों के सहारे मेरे पूरे वजूद को अपने अंदर जज्ब करती चली गई। ऐसा लगा कि मेरे गमों, मेरी उदासियों, मेरी फिक्रों और अपनी इन आंखों के जरिए निचोड़ कर दूर, बहुत दूर दफन कर आई। और फिर अपनी दो आंखों के जरिए मेरे अंदर खुशियां, मुस्कुराहटें जज्ब करती चली गई। अचानक मेरी तब्दीलियों पर सभी ने हैरत का मुजाहरा किया। किसी के समझ में इन तब्दीलियों का राज ना आ सका। हम जब सरहद पार करेंगे, उस वक्त तुम बहुत याद आओगे। एक तहरीर फिर चमकी, और उस रोशनी में वो रात रोशन हुई जब निस्फ शब से जरा पहले तक मैं अफशी के साथ शहर के खास शाहराहों पर घूमता फिरा था। उस वक्त शहर की आंखें तकरीबन बंद हो चुकी थी, मंजिल का पता न था, समतों का तयन हमारे बढ़ते हुए कदमों से हो रहा था। अफशी चाहती थी हम यूं ही चलते रहें। मैं कहीं दम भर ठहर जाता, तो वो आगे बढ़ जाती, फिर जरा तेज चलकर मैं उसके दोष बदोश हो जाता, और फिर घर लौट आता। वक्त का धारा बहता रहा, निशानात छोड़ता चला गया। मोहब्बत के नकूश दो दिलों पर गहरे होते रहे। शामें खुशगवार और सुबह पुरबहार गुजरने लगी। और अब मैं पतझड़ के गर्म रात में
सहरा का मुसाफिर हूँ और एक तहरीर मेरे लिए बैक वक्त साया नखील भी है और शोले सहरा भी। हम जब सरहद पार करेंगे उस वक्त तुम बहुत याद आओगे, तुम बहुत याद आओगे, तुम बहुत याद आओगे। मेरी आंखें धुंधला गई हैं और धुंधले कुछ अक्स मेरी आंखों के सामने रक्स कुना है। मुझे बहुत सारी सुबह शामें याद आती हैं और फिर वो लम्हे याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमावस की काली रात थी, मैं 1 माह बाद अपने घर वापस लौटा था। उस दरमियान ना ही अफशी से मुलाकात हुई थी, ना ही खत के जरिया बातें। इसलिए मैं तरह तरह के प्लान बनाता, बिगाड़ता, नए तरीके सोचता हुआ जो ही घर पहुंचा, ढेर सारे जाने पहचाने लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और मैं गड़बड़ा गया। क्या बात है, खैरियत तो? तब अम्मा ने बताया कि आंटी का अचानक कराची जाने का प्रोग्राम बन गया और अब सब लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। बस उस वक्त उसी लम्हा रिक्शा आने वाला है। मैं साकित खड़ा एक तक देखता रहा। चारों तरफ मेरी निगाहें मल्लाती रहीं, खामोश, सपाट, बेजुबान आंखें अफशी को तलाश कर रही थी। लेकिन अफशी का दूर दूर तक पता न था। उदास उदास आंखों से आंसू के चंद कतरे गिरे तो गिरते ही चले गए। अचानक मेरी नजर दूसरे कमरे से निकलती हुई अफसी पर जा टिकी, जिसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो अपने आप को काबू में न रख सकी। दोनों के सब्र का बांध टूटते ही एक ऐसा धमाका हुआ जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी न था। आज तक खुद हम दोनों ने भी मोहब्बत का इकरार अल्फाज के जरिया नहीं किया था, लेकिन आज न जाने कौन सा जज्बा था कि हम दोनों दुनिया से बेखबर, अपनों से बेखबर, दीवानावार एक दूसरे से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। हम दोनों के चेहरे पे एक अजीब सा हिजान और इंतशार था। आंखों से अजब सा इस्तराब और बदहवासी झांक रही थी। और फिर अचानक जैसे हमें होश आ गया, जैसे हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के इज़्दिहाम का एहसास हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे से यूं अलग किया जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए सांप हों। रिक्शा आ चुका था, वो रिक्शे पर जा बैठी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हमारे बस में उसके सिवा था ही क्या। स्टेशन आ गया, ट्रेन आ गई, अफसी सवार हो गई, ट्रेन चली गई और मैं लोहे की पटरियों को देखता रहा और कुछ न कर सका कि अपने बस में था ही क्या, अपने बस में है ही क्या। मैं सोच रहा था और तहरीर जगमगा रही थी, हम जब सरहद पार करेंगे तो तुम बहुत याद आओगे। दिल कोई फलसफा नहीं जानता, उसकी जिदें अनोखी हैं, अंदाज निराले हैं, अदाएं जानलेवा है। वो वहां बसेरा कर लेता है जहां आंधियां हों, तूफान हों, बगोले चक्कर काट रहे हों। जख्मी दिल सर पटक कर आवाजों पर आवाजें देता रहता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। आज मेरा दिल भी ना जाने क्यों उन्हीं राहों पर बेतहाशा भाग रहा है, पुकार रहा है। मैं दूर, बहुत दूर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सुन नहीं पा रहा। दिन भर का थका परेशान औंध रहा हूँ, आंखें नींद से नहीं फिक्र से बोझल हो रही है। अब्बू कब्र में आराम से सो रहे हैं या जाग रहे हैं, मुझे पता नहीं। मैं मोहब्बत की नई इबारतों को समझने की कोशिश करता हूँ। दिल के अंदर और दिल के बाहर की बस्ती में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मियाँ। बारिश बुजुर्ग की कही बात आज बहुत याद आ रही है, आज बहुत याद आ रही है। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा हम्म। सूरत के साथ आपने अपने दिल के जज्बात पेश किए हैं। बहुत उम्दा जी। मैं मोहतरम जनाब नासिर अली सैयद साहब से मुल- मुल्तमिस हूँ कि आप अपना तजिया पेश करें। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल मशहूर कुन अफसाना था
जो इनकी लाइनें थी, जो जुबान थी, जो मुकालमे थे और जो फैंटेसी थी, असल में जो बड़ा दुख दुख है जो राइटर के लिए किसी भी हवाले से है, वो हिजरत का है। हिजरत के दुख जो हैं, वो हिजरत ने जो कचोके लगा रखे हैं, वो आप देखें कि अब एक जमाना बीतने के बाद भी वो जख्म हरे हैं। वो जख्म भरते ही नहीं है, कितनी भी कोशिश की जाए, किस 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 चीज को बुलाया जाए। और ये जो इन्होंने कमाल कमाल महारत से जो लाइन लिखी कि जब हम सरहद पार करेंगे, आप मुझे ऐसा है कि रुला देने वाली, चीखें मार मार कर रोने को दिल करता है। जब जब अफसाने में ये लाइन आई है, तो वो कैफियत सारी, वो सारी मोहब्बतों की खट्टी मीठी कहानियां, बहुत मजे मजे की लाइनें हैं, चाहत के वो सारे नशे रिश्ते, वो सारे हवाले बहुत खूबसूरती के साथ वो उसको लेकर चले हैं। लेकिन दुख, बड़ा दुख वही है, वो विछोड़े का है। ये किसी एक अफी के बिछड़ने की कहानी नहीं है। ये कई अफियां जो हैं जो उसमें बिछड़ गई हैं, कई लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। यहाँ मीना जी मौजूद हैं, मीना इरफान। जी तो उनके जी हवाले जी से मैं बात भी उनकी ये कर रहा था, जो उनका इरफान सिद्दीकी मरहूम का जो जी दुख था, या आखिरी वाली गजल जी में आप देखें, जी वो दुख देखें, ये एक अफसाना देखें, ये सब वो हिजरतों के दुख हैं जो जो अभी बिल्कुल तक उनका बोझ उठाए। हमें नहीं पता, आने वाली नस्ल को इसका एहसास भी नहीं होगा, वो क्योंकि वो उस बेशक तजुर्बे से गुजरी ही नहीं है। हिजरत ने बिल्कुल हिजरत के जिस तजुर्बे से हमारी नस्ल गुजरी है, या हमसे जरा पहले के लोग गुजरे हैं, या जिन्होंने देखा नहीं तो इमीडिएट उसके बाद आए हैं और उन्होंने सुना है, वो दुख अभी तक तरोताजा है। मैं समझता हूँ कि हिजरत के उन दुखों को लेकर इन्होंने जो ये मोहब्बत की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी छेड़ी है। मैं सलाम करता हूँ इन्हें। मैं तो उनके साथ बाहर चला जा रहा था, और जब जब वो लाइन आती थी, तो वो तो बिल्कुल कचोके लगाने वाली लाइन थी कि हम जब सरहद के पार जाएंगे तो तुम मुझे बहुत याद आओगे। तो ये यादें ही तो हैं जिसके सहारे फिर इंसान अपनी बाकी की जिंदगी गुजारता है। और ये दुख, हिजरत का दुख, उस वक्त शायद कम हो जब आपने इसे खुद चुना हो, लेकिन जब ये आप पर मुसल्लत कर दिया जाए, और वो दुख, वो बहुत बड़ा दुख होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी। सलाम करता हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत ही जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह नासिर बहुत भाई। खूबसूरत बहुत ही ये हमारे खूबसूरत लिए कहानी। सनद से कम नहीं है, और अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे, खुशो खुशम रखे। यहाँ बहुत और नई नस्ल की आप आमीन लोग आबियारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हिम्मत और हौसलों को बढ़ाना। आज साहिबीन जो है वो हुजरा नशी होते जा रहे हैं, बिल्कुल और ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो चीजें खत्म कर रहे हैं। आप लोग प्लेटफॉर्म के जरिया और लोगों को एकजा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें एक नए जज्बे की आबियारी कर रहे हैं, जो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक है। आप लोग बहुत इसमें शुक्रिया, मोहब्बत बहुत गौहर मोहब्बत। शुक्रिया। नायाब है आफरीन है आप। आप सब पे आफरीन आफरीन जी हाँ, आप यकीनन ये हिजरत का जो दुख बयान किया है, वाकई हम लोगों को इतना नहीं पता जो है। लेकिन ये कि जो अपने नानी याद वो देखती थी, मैं अपनी, मुझे नानी याद आ गई कि जब उनका इंतकाल होने वाला था, नासिर भाई, मतलब कुछ अरसे पहले, एक आध महीने पहले से वो अपने वहां पे चली गई थी, जो इंडिया में अपनी हवेली और अपने वो, तो वो वही बातें करने लगी थी कि ये दालान में ये नहीं रखना, वो देखो हमने अचार डाला हुआ तो वो वहां ऊपर छत पे पहुंचा दो, कोटे पे को, और मतलब ऐसे ऐसे वो जुमले बोल रही थी कि उनका लग रहा था कि जैसे वो वहां मौजूद हो। जो बिल्कुल उनका हिजरत बिल्कुल। का दुख था वो जाहिर है अंदर ही अंदर वो समेटे रही होंगी, लेकिन जब इंतकाल से पहले एक दो महीने पहले वो वैसी ही बातें करने लगी थी। वो वही पुकारती थी अपने माँ बाप को भी, जैसे कि वो छोटी सी लड़की हो और जो पुकार रही हो अपने वालदा से जवाब दे रही हूँ, मैंने रोटी पका के रख दी है। तो बस समझी, जब उम्र का आखिरी हिस्सा आता है, तो दादा आदमी उस जमाने में लौट के जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो इंसान की जिंदगी है, ये एक दायरे की तरह है। यहाँ से वो शुरू होती है और जाकर फिर खत्म होती है। वही खत्म तो मैं ये होती है कहता हूँ कि जब वो, जहाँ से वो उसका आगाज हो रहा होता है, तो वो पिछली दुनिया भूलता चला जाता है। एन हाँ, जवानी में बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो लौट के अधेड़पन में आता है, तो वो उसको फिर नजर आने लगती है, और वो उस इसी दुनिया नुक्ते में पे वापस है। जाने की कोशिश भी चला करता जाता है। है। जी हाँ, ये जी जी। ये ये दुख है, ये सबके हाँ, मुश्तरका दुख है। वाकई ये हिजरत का दुख भी उन बेशक। लोगों ने सहा है, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। जी सामीन, हमारे लेकिन हम लोगों ने
لیکن تبسم صاحبہ ہم لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے اس کو، اپنے صحیح، بزرگوں کو دیکھ کے اپنے والد کا دکھ محسوس کرتے تھے ہم بھی، کیونکہ وہ اور جس پتہ طرح بالکل سے جذباتی، ذرا ذرا سی بات پہ جذباتی ہو جاتے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھر جاتے اور تھے، پھر یہ تو مینا وہ اس وقت یہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نہیں، اور یہ بالکل حکمران آپ کے والد صاحب کی جو وہ غزل ہے یا آخری والی، جی اوف اوف اوف، اس کو تو آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ اس کو پڑھ ہی میں نے نہیں سکتے، اتنی پڑھی بہت جی اتنی جی پرستر پرتاثیر، اور کیا کیا وہ کیا غزل ہے وہ، اچھا، تو اس میں بالکل وہ سارے دکھ نہیں، وہ جیسے ایک، آج ہم نے افسانے میں جی سنے وہ سب اس میں موجود ہیں، مجھے بالکل بھی بے بہت یقین شک، کہ وہی یاد آ رہی تھی، ناصر بھائی نے بھیجی تھی ہم لوگوں کو، ہاں اور جی میں نے جی جی ہم نے بھی شیئر پڑھی کی تھی تھی جی۔ میرا تاکہ اس خیال کو ہے آپ کہ ایک دفعہ اگر پڑھ لیں۔ اگر ہماری حکومتیں ساتھ دیتی اور یہ راستے بند نہ ہوتے، کاش، یہ تکلیفیں نہ ہوتی، کاش ایسا شاید ہوتا، اتنا بڑا دکھ نہ بن جاتا، جتنا بڑا یہ دوریاں کاش ہم سوچتے ہیں یہ ہاں کہ جیسے آف سارے لائن بھی ہم لوگ کی ملاقاتیں ہو ہاں سکتی، کی کاش جاتی ایسا ہے، اور ہوتا۔ پھر یہ کہ ایک دوسرے یہ راستہ، یہ تو اچھا ٹیکنالوجی نے ہمیں اکٹھا کر دیا، میں جتنی جی دفعہ بھی بالکل بالکل، گیا ہوں، جب میں جتنی دفعہ بھی انڈیا گیا ہوں، میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں اپنے ادیبوں شاعروں کی بات میں نہیں کر رہا، پروفیسرز کی، جی یونیورسٹیز کی بات نہیں جی کر رہا، میں عام لوگوں میں، جی بازاروں میں بھی گیا ہوں، جو پیار میں نے دیکھا ہے، جو محبت دیکھی ہے، جو احترام دیکھا ہے، ہاں یعنی جی عام جی دکاندار ان کو پتہ چلتا پاکستان سے بغیر، میں خاص طور پہ یہ واقعہ تو میں نے شاید کئی دفعہ لکھا بھی ہے اپنے ان حوالوں سے، کہ یہ جو کیا نام ہے، تاج محل کے باہر اس بینچ کے اوپر جو جی تصویر تھی، اس تصویر کے جی حوالے سے میں نے یہ بات ایک دفعہ لکھی بھی ہے، کہ وہاں کا مجھے فوٹوگرافر کہہ رہا تھا، فوٹوگرافر مجھے جی کہہ رہا تھا کہ جی آپ فیل کریں کہ یہاں آپ وہ کیا ہے، پرویز مشرف صاحب نے بھی آ کی تصویر، مطلب اب یہ بات کرنا یہ جی آسان کام نہیں تھا، تو میں محسوس کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ، پھر میں نے اسے کہا چلیے اس بینچ پہ تو اس کے ساتھ بیگم تھی، میں آج اکیلا آیا ہوں، میں کیا تصویر کھینچواؤں تو لیکن یہ کہ عام آدمی کے دل میں وہ ساری باتیں ہیں، جی وہ ہاں، بے موجود شک، ہے۔ بالکل بے شک، بالکل، جی جی اس سامعین، لیے کہ اصل ہر اصل میں شخص خاندان آپ کا فرد وہاں ہجرت ہے۔ کا دکھ آپ لوگوں نے جس طرح سب نے محسوس بھی کیا ہوگا، جو خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے، اور واقعی یہ بہت بڑا دکھ ہے، ہجرت کا دکھ جو ہے، اور اس کو سہنا بھی، جو لوگ سہ رہے ہیں وہ بھی واقعی قابل کہنا چاہیے احترام بھی ہیں، اور ان کے جذبات کے بالکل، احساسات کا ہم لوگ احساس رکھتے ہوئے بہت ہی یہ خوبصورت۔ کھرچا نہیں جا سکتا، یہ کھرچا نہیں جا سکتا، جی، چلیے اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں گل ارباز۔ ایسے اس کیفیت سے ہم اصل میں آپ نکلنا نہیں چاہتے تھے، چلیے آگے چلیں جی جی، بالکل محبت بھرے نکلنا نہیں جذبات چاہتے۔ یا محبت بھرے جذبات سے ڈاکٹر صاحب نے اپنا افسانہ پیش کیا، واقعی بہت متاثر کن۔ جی